हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12th एनएस बोर्ड का जो है पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 14, जिसमें हम आज करेंगे स्टेट जो है लेजिस्लेचर करेंगे, जिसका मतलब होता है कि राज्य में विधानमंडल की व्यवस्था कैसे की गई है, उसके विषय में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। ये चैप्टर कई मानने में कई क्लास के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे सीबीएसई के हों, चाहे एनआईएस बोर्ड हो, चाहे यूपी बिहार बोर्ड के बच्चे हों। अगर उनके सिलेबस में स्टेट जो है लेजिस्लेचर यानी राज्य का विधानमंडल है, तो इसका मतलब ये चैप्टर उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। और महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि ये आपको हिंदी इंग्लिश दोनों ही माध्यम में समझाया जाएगा। साथ में आप के लिए जो है ये हिंदी इंग्लिश दोनों में डिस्प्ले भी होगा, तो ये काफ़ी आपके लिए इम्पोर्टेंट रहता है। लेकिन आपको पता है कि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इम्पोर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए, शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनएसएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन अब देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। There is a most important chapter here, state legislature. There is a most important topic here. This is a composition of the state legislature. What do you mean by composition of the state legislatures here? In a most of state, the legislature is consists of the governor and legislature is the assembly, means Vidhan Sabha. This means that this state has been unicameral legislatures in a few states. There are two houses of the legislatures, namely is the legislature assembly, means Vidhan Sabha, and legislative council, means Vidhan Parishad. Besides there, a governor, there are two house legislatures is known as the bicameral. There is a bicameral, there is two houses of the governor, and the 5 states has the bicameral is a legislatures. Their legislative assembly is known as the lower house of popular house. The legislature is a council is known as the upper house, just as a Lok Sabha has been to made a powerful at the union level. The legislature assembly has been to the made a powerful body in a state. The most point important coming here, the legislative assembly Vidhan Sabha. There is a legislative assembly is a Vidhan Sabha here. There is a legislative is assembly Vidhan Sabha is a, every state is a represent the people of the state. The member of Vidhan Sabha are directly elected by the people on the basis of the universal adult franchise, and they are directly elected by the all adult citizens are registered as the voter in their state. All men and women is who are the 80 years of the age and above are the eligible to be are included in the voter list. They vote to be elected to member of state assembly. Members are elected from a territorial constituency. Every state is divided into the many single member constituency as the number of member to be elected. As in case of the Lok Sabha, contained member of seat are reserved for the scheduled caste, and is a some state is a scheduled tribe also. This depend on population of this weaker section in the state. In order to become a member of Vidhan Sabha, as a person must be citizen of India, have attained to the age of 35 years, and he is named must be a voter list and must not hold any office of profit and should not be a government servant. The number of Vidhan Sabha member cannot be more than 500 and not less than 60. However, every small state have been allowed to have a lesser number of members. Thus, the Goa has only 40 members in its assembly. Uttar Pradesh is a big state even after the creations of Uttaranchal from this state is a 2002 has a 430 seat in the assembly.
The governor of state has the power to nominate one member of the Anglo-Indian community. In this community is not be acquired or represented in the house. As in the case of the Lok Sabha, some seats are reserved from two members of the scheduled caste and scheduled tribes. The tenure of the Vidhan Sabha is a 5 year, but the governors can be dissolved before the composition of its term on the advice of chief minister. It may be dissolved by there is a precedent in a case of constitutionally emergency is a proclaim under Article 356 of the Constitution. In case of proclamations of national emergency under Article 352, the Parliament can be extended the term of the legislative assemblies for the period of not be exceeding 1 year at a time. The next point here, a presiding officer, the speaker. The member of Vidhan Sabha elected there is a presiding officer. The presiding officer is known as the speaker. The speaker presides over to meeting of the house and conduct it is a proceedings. He maintained order in the house, allowed to the member to ask question and speak. He put bill and other measure to be vote and announcement and the result of voting. The speaker does not be ordinary vote at the time of voting. However, he may be exercise a casting vote in case of the tie. The deputy speaker presides over to meeting during to the absence of the speaker. He is also elected by the assembly from amongst it is a member. A tie means that equal number of the member has been voted to the favor of against a bill or its solutions to be break is a tie casting vote to the exercise by the presiding officer of the legislative assembly. The next year is a legislative is a counseling Vidhan Parishad. The Vidhan Parishad is the upper house of the state. Is legislatives. It is a not to be executive. Is every state. Every few state have a bicameral legislatures as that mean having two house. As the present of 5 states, by the Uttar Pradesh, Bihar, Karnataka, Maharashtra, and Jammu and Kashmir have a Vidhan Parishad, while the remaining 23 states have one house, is a Vidhan Sabha. The relatives is there is a counseling or the legacy of the British period. The parliament can create a Vidhan Parishad in the state where it does not be exist. If the legislative assembly of the state the passes other resolutions to this effect by the majority of the state as a membership of assembly and by a majority of not be less than two-thirds of the member of the assembly present and voting and the sending the resolution to the is a parliament. Similarly, if a state has a counseling and assembly want it to be abolished, it may be adopted the resolution by a similar majority and send it to be a parliament. In this situation, parliament resolved to be abolish the concerned legislative counseling according counseling of Punjab, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, and West Bengal were abolished. According to the constitution, the total number of members in the Vidhan Parishad of a state should not be exceed one-third of the total number of members of Vidhan Sabha. But this number should not be less than 40. The Jammu and Kashmir is expectations. There is the Vidhan Parishad has a 36 member. In order to be a member of legislative counseling, a person concerned should be citizen of India, have attained to the age of 30 years, be registered voter in the state, not hold any office of profit. The Vidhan Parishad is a partly elected, other particles is nominated. Most of the members are the indirectly elected in the accordance with the principle of proportional representation by means of single transferable vote is system. Different categories of members represented different interests. The composition of the legislative counseling is the following. The first year, one-third member of the counseling are selected by the number of Vidhan Sabha. Second year, one-third of the member of the Vidhan Parishad are elected by the electorate. Is a consist of the member of the municipalities, district is a board and other local body in the state. The third point here is
12th is a member are elected by the electorate is a consist of the graduate in their state with the standing of 3 years. And next year, 1/12 is a member are elected by the electorate is a consist of teacher of education institution within the state not lower in a standard than to the secondary school who have a teaching experience of at least 3 years. And the remaining about the one of sixth member are nominated by the governor for the amongst the person having to special knowledge in the sphere of literatures, science, arts, and cooperative movement and social service. The Vidhan Parishad, like a Rajya Sabha, is a parliament house. It is a never to dissolve the tenures of it is a member is a 6 year. 1/3 of it is a member tire after every 2 years. The retiring member are the eligible for the re-elections. In case of vacancy arising out of registration of the death by the election is held for the remaining period of such a member tenure. The next point here, the chairman of the legislatives is the counseling is the presiding of officer. The presiding officer of the Vidhan Sabha legislatives counseling is known as the chairman, who is elected by the member. It is a business of Vidhan Parishad is conducted by the chairman. He presides over to the meeting and maintaining discipline and order in the house. In addition to his vote as to member, he can exercise his the casting vote in case of trial in his absence. Deputy chairman or preside over to the house. He is also elected by the member of Parishad from to amongst the himself. The next year, a season of the state legislatures here. The state legislatures is the meet at the least twice a year, and the interval between the two seasons cannot be more than 6 months. The governor is a some months, and the progress of the season of the state legislatures, his addresses of Vidhan Sabha to both house. If there is a bicameral legislatures at the commencement of the first season after each general election and at the is a commencement of the first season of year. This address reflects the policy statement of the government which is be discussed in the legislatures and the privilege and immunity of the member of the state legislature and similar to that of member of parliament. यहाँ पर जैसे दोस्तों हमारे समक्ष आया है राज्य विधानमंडल की संरचना। देखिए राज्य विधानमंडल की संरचना किस प्रकार बनाई गई है ये भी जानना अति रोचक रहेगा। ये बात बहुत ही साधारण है। अगर देखा जाए तो कहते हैं अधिकतर राज्य के विधानमंडल में राज्यपाल तथा विधानसभा होती है। इसका अर्थ यह है कि राज्य में एक सदनीय विधायक है और कई राज्य में विधानमंडल के 2 सदन होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। जहाँ 2 सदन होते हैं उसे हम द्विसदनीय विधायक कहते हैं, यानी इसे द्विसदनीय विधायक भी कहा जाता है। 5 राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल है। देखिए 5 ही राज्य में जो है द्विसदनीय विधानमंडल है। विधानसभा का निचला सदन या लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है, यानी निचले सदन को हम जो है लोकप्रिय सदन के नाम से भी जानते हैं। विधान परिषद को ऊपरी सदन भी कहते हैं। जिस प्रकार केंद्रीय स्तर पर लोकसभा को अनंत शक्तिशाली बनाया गया है उसी प्रकार राज्य में विधानसभा को शक्तिशाली बनाया गया है। तो मैंने आपको कई बार बताया है कि जिस प्रकार हमें सेंटर में गवर्नमेंट देखने को मिलती है वैसे ही हमें स्टेट में भी इसी प्रकार के गवर्नमेंट देखने को मिलती है। कई मानने में दोनों काफ़ी सेम ही दिखते हैं और उनका कार्य फंक्शन सारे जो होते हैं सेम ही होता है। सिर्फ इतना फ़र्क होता है कि वो कहते हैं कि राष्ट्र लेवल पे होता है यानी नेशन पे होता है और ये जो होता है स्टेट लेवल पे होता है, लेकिन सारी प्रक्रिया सेम ही होती है। इसलिए कहा जा सकता है कि ये दोनों जो है शक्तिशाली होते हैं अपने अपने क्षेत्र में। उसके पश्चात हमारे समक्ष विधानसभा। देखिए प्रत्येक राज्य में एक विधानसभा है और यह राज्य की जनता का प्रतिनिधित्व करता है। विधानसभा के सदस्यों सार्वभौमिक व्यास मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। उनका जो है निर्वाचन राज्य में पंजीकृत सभी व्यास नागरिक मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होती है। कहते हैं 18 वर्ष या उससे ऊपर की आयु के सभी स्त्री और पुरुष मतदाता सूची में शामिल होने के योग्य होते हैं और वह राज्य विधानसभा के सदस्यों को चुनने के लिए मतदान करते हैं। सदस्य निर्वाचन क्षेत्र के आधार पर निर्वाचन किए जाते हैं और प्रत्येक राज्य को उतने ही एक स्तरीय निर्वाचन क्षेत्र में बांटा जाता है जिसे सदस्य चुने जाते हैं। लोकसभा की तरह यहाँ भी कुछ स्थान अनुसूचित जातियों के लिए तथा कुछ स्थान अनुसूचित जनजातियों के लिए
आरक्षित किए जाते हैं। यह उस राज्य में उन वर्गों की जनसंख्या पर निर्भर करता है। यानी देखा जाए तो विधानसभा में भी जनजाति और अन्य पिछड़े जातियों के लिए भी, अनुसूचित जनजातियों के लिए भी जो है सीट आरक्षण किया गया है, जो कि बहुत काफ़ी उनको प्रोत्साहित करने के लिए प्रावधान बनाया गया है। यदि बात यहाँ देखा जाए कि राज्य विधानसभा सदस्य बनने के लिए एक व्यक्ति में कौन कौन सी योग्यता होना चाहिए, तो सबसे पहली बात तो यही है होना चाहिए कि वो भारत का नागरिक हो और वह 25 वर्ष का आयु पूरा कर चुका हो। उसका नाम मतदाता सूची में होना चाहिए और किसी लाभ के पद या अथवा सरकारी पद पर कार्यरत न हो। तो ये सारी योग्यताएं किसी भी सदस्य को होना चाहिए राज्य विधानसभा के सदस्य बनने के लिए। विधानसभा के सदस्यों की संख्या जो है 500 से अधिक तथा 60 से कम नहीं हो सकती है, किंतु बहुत छोटे राज्यों को न्यूनतम संख्या से भी कम संख्या रखने की स्वीकृति दी गई है। जैसे गोवा की विधानसभा में केवल 40 सदस्य ही हैं और 2002 में उत्तरांचल और उत्तर प्रदेश में से अलग कर देने के बाद भी यह एक बहुत ही बड़ा राज्य है, इसलिए इसकी विधानसभा के सदस्यों की संख्या अब भी 403 ही है। यदि किसी राज्य की विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का उचित प्रतिनिधित्व न हो तो राज्यपाल को यह अधिकार प्राप्त है कि वह समुदाय का एक सदस्य मनोनीत कर सके। लोकसभा की तरह यहाँ भी कुछ स्थान जो है सुनिश्चित जनजाति और जनजातियों के लिए आरक्षित है। यानी देखा जाए अनुसूचित जनजाति और जनजातियों के लिए आरक्षित किया गया है। विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, परंतु मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल अवधि पूरा होने से पहले भी इसको भंग कर सकता है। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत यदि राष्ट्रपति किसी राज्य में सर्वसाधारण संकट की स्थिति में आपातकाल की घोषणा कर दे तो राष्ट्रपति विधानसभा को भंग कर सकता है और अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होने पर संसद विधानसभा के कार्यकाल को एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ा सकती है। उसके पश्चात हमारे समक्ष अध्यक्ष यानी सभापति। कहते हैं विधानसभा के सदस्य अपनी सभापति निर्वाचित करते हैं, जिसे अध्यक्ष कहा जाता है। अध्यक्ष सदन के बैठकों का जो है सभापति करता है एवं इसकी कार्यवाही को भी चलाता है। वह सदन का अनुशासन बनाया रखता है तथा सदस्यों को प्रश्न पूछने तथा बोलने की स्वीकृति प्रदान भी करता है। वह विधायकों तथा अन्य प्रस्तावों पर मतदान करता है तथा जो है परिणाम घोषित भी करता है, किंतु मत समान होने की स्थिति में वह अपना निर्णय मत दे सकता है, जो कि हमने पहले भी पढ़ा था कि अगर परिणाम बराबर हो जाता है तो वो अपना मत दे के जो है किसी एक पार्टी को विजय बना सकता है। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष बैठकों की सभापति करता है और उपाध्यक्ष भी सदस्यों द्वारा अपने में से ही किसी एक को चुनता है। यदि किसी विधायक अथवा प्रस्ताव के पक्ष और विरोध में मत सामान्य हो तो उसे टाई कहा जाता है। ऐसी परिस्थिति में टाई तोड़ने के लिए अथवा गतिरोध समाप्त करने के लिए अध्यक्ष अपना निर्णायक मत दे सकता है। इससे कोई भी व्यक्ति जो है अपना प्रशासन चला सकता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष विधान परिषद। देखिए, विधान परिषद राज्य विधायक का उच्च सदन माना जाता है, यानी सबसे ऊंचा सदन इसी को कहते हैं। अधिकतर राज्य में विधान परिषद नहीं है, बहुत कम राज्य में द्विसदनीय विधायक है। आजकल 5 राज्य जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र तथा जम्मू एवं कश्मीर में विधान परिषद है, जबकि 23 राज्य में केवल एक सदन ही है अथवा केवल विधानसभा ही है। विधान परिषद ब्रिटिश काल की विरासत है। यदि किसी राज्य की विधानसभा जहां विधान परिषद नहीं है अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थिति एवं मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों को 2/3 बहुमत से पारित करके द्विसदन अथवा विधान परिषद बनाने का प्रस्ताव संसद के पास भेजे तो संसद उसी स्थिति में विधान परिषद का निर्माण कर सकती है। इसी प्रकार यदि किसी राज्य में विधान परिषद है परंतु वे चाहते हैं कि इसे समाप्त कर दिया जाए तो संबंधित राज्यों को विशेष बहुमत से एक प्रस्ताव पारित कर संसद को भेजना होता है। अब संसद एक प्रस्ताव पारित करेगी कि दूसरे सदन समाप्त कर दिया जाए। इसी तरीके से पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु तथा पश्चिम बंगाल में जो है विधान परिषद समाप्त कर दी गई थी। संविधान के अनुसार विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या विधानसभा की कुल सदस्यों की संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होना चाहिए, परंतु यह संख्या कम से कम 40 होनी चाहिए। जम्मू तथा कश्मीर इस नियम का अपवाद है तथा यहाँ जहाँ परिषद की संख्या केवल 36 ही है। विधान परिषद सदस्य बनने के लिए निम्नलिखित योग्यता होना चाहिए। सबसे पहली बात तो यही कि वह भारत का नागरिक हो, 30 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो, राज्य का पंजीकृत मतदाता हो और उसके पास कोई लाभ का पद न हो।
यदि बात करें विधान परिषद अधिकांश रूप से निर्वाचित तथा आंशिक रूप से मनोनीत होती है। अधिकतर सदस्य अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमित मत प्रणाली द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। विधान परिषद की रचना इस प्रकार देखा जा सकता है कि परिषद के 1/3 सदस्य विधानसभा सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। इसके 1/3 सदस्य एक निर्वाचक मंडल द्वारा निर्वाचित होते हैं, जिसमें नगर निगम, नगर परिषद, जिला बोर्ड तथा राज्य के अन्य स्थानीय शासन की संस्थाओं के प्रतिनिधित्व होते हैं। कुल सदस्यों का 12वां भाग राज्य के स्नातकों द्वारा निर्वाचित होता है, जिनको स्नातक बनने कम 3 वर्ष हो चुका हो। कुल सदस्यों का 12वां भाग राज्य का उन अध्यापकों द्वारा निर्वाचित होता है जिनका अध्यापन का अनुभव कम से कम 3 वर्ष का हो तथा वो उच्च माध्यमिक तथा उससे ऊपर के स्तर को शैक्षिक संस्थाओं में पढ़ाते हों। शेष लगभग 6 भाग राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ये लोग वो होते हैं जो साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी और सामाजिक क्षेत्र में जो शक्ति प्राप्त व्यक्ति हो। केंद्र में राज्यसभा की तरह विधान परिषद भी एक स्थायी सदस्य है और यह कभी भंग नहीं होती है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होती है और प्रत्येक 2 वर्ष के पश्चात इसको 1/3 सदस्य सेवा विमुक्त हो जाते हैं। सेवा विमुक्त होने वाले सदस्य पुण्य चुनाव लड़ सकते हैं। यदि किसी सदस्य को मरने से अथवा त्याग पत्र देने से कोई स्थान रिक्त होती है तो उसका चुनाव केवल बचे हुए कार्यकाल के लिए ही होता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष विधान परिषद की सभापति। देखिए, विधान परिषद का अध्यक्ष सभापति कहलाता है, जिसे सदस्य द्वारा चुना जाता है। विधान परिषद की कार्यवाही सभापति चलाता है। वह बैठकों की अध्यक्षता करता है और सदन में अनुशासन बनाए रखता है। सदस्य होने के नाते मताधिकार के अतिरिक्त गतिरोध को स्थिति में वह अपना निर्णय मत भी दे सकता है और उसकी अनुपस्थिति में उपसभापति सदन की अध्यक्षता करता है। उसका निर्वाचन भी सदस्यों में से उन्हीं के द्वारा भी किया जाता है। बात यदि हम करें अगले पॉइंट की, जो कि विधानमंडल के सत्र है, इसका अर्थ यही हुआ कि राज्य विधानमंडल का सत्र वर्ष में कम से कम 2 बार अवश्य होते हैं और दोनों सत्रों के बीच 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। राज्य विधानमंडल का सत्र राज्यपाल द्वारा बुलाया जाता है तथा स्थगित भी कर सकता है। वह विधानसभा अथवा दोनों सदनों को, यदि राज्य में विधान परिषद है तो आम चुनाव के पश्चात पहले सत्र की आरंभिक बैठक में और प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र से पहले दिन संबोधित भी कर सकता है। इस संबोधन में सरकार उन नीतियों की चर्चा करते हैं जिन पर विधानमंडल बहस होनी होती है। राज्य विधानमंडल के सदस्यों के विशेष अधिकार संसद सदस्यों जैसे ही होते हैं, यानी काफ़ी इनके मिलते जुलते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट बात भी यहाँ रखता है। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक जो था यहीं तक था। इसके आगे इसकी पावर पे हम विचार विमर्श करेंगे, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, उसको भी देखना आप नहीं भूलना। जब तक सभी टॉपिक सही रूल रेगुलेशन साथ नहीं देखोगे आपको समझ नहीं आएगा। इसलिए हर एक टॉपिक को लाइन वाइज देखो, और लाइन वाइज तब देख पाओगे जब चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे। चैनल सब्सक्राइब करने से क्या होता है कि मेरा वीडियो, हर एक वीडियो जो होगा एक लाइन वाइज ही आपको प्राप्त होगा, क्योंकि सब्सक्राइब करके रखोगे। जब वीडियो में जाओगे चैनल पे तो वहाँ पर हर एक जो वीडियो होगा एक लाइन वाइज ही होगा, तो एक के बाद एक आप देख सकते हो, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अगर ये छोटे छोटे पार्ट समझ में नहीं आ रहा है तो एक आपका बड़ा पाठ भी होता है जो पूरे ही सिलेबस का होता है, तो उसको भी आप देख सकते हो, जिसमें सारी बातें टू पॉइंट होती है। तो ये आपके लिए बनाया गया है और आपके फ़ायदे के लिए बनाया गया है। त्रिपाण स्टडी सेंटर हम सदैव ही आप लोगों के फ़ायदे के लिए ही कार्य करता है। तो आपका भी यही फ़र्ज़ बनता है कि जितना हो सके इस वीडियो को दूसरे बच्चे तक पहुंचाना है, जो कि त्रिपाण स्टडी सेंटर का सबसे बड़ा महत्वाकांक्षा है। दोस्तों, साथ में सब्सक्राइब करके रखना भी आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, जिससे आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हो। इसी के साथ दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, तो सब्सक्राइब करना आपका फ़र्ज़ बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन समय समय पर आपको प्राप्त
होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से तिरपान स्टडी सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहाँ पर आप तिरपान लिखिएगा तो जो है वो तिरपस कर देगा, ठीक है। जो आप गूगल पर सर्च करेंगे वो तिरपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फ़ायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्ज़ाम खत्म हो जाने के मेरा क्या ज़रूरत है तिरपान स्टडी सेंटर से, ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने का सोचिएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, तिरपान स्टडी सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास 9th 10th 11th 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्टों को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NIC बोर्ड के जो है 10th +2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट्स सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफ़ी जो है तिरपान स्टडी सेंटर का फ़ायदा ही फ़ायदा है, ठीक है। अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊंगा जो आपको फ़ायदा पहुंचाएगा। एग्ज़ाम के तौर पे मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं ना वीडियो बनाऊं और आपको फ़ायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूँगा, ठीक है दोस्तों। इसलिए सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए, ठीक है दोस्तों। अपना ध्यान रखना, बाय।